So today we will discuss about suspensions and colloids. So what are suspensions? So suspensions are actually the heterogeneous mixture, okay? And the particles present in the suspension have the diameter more than 1000 nanometer. So if we compare the suspension with your solution, so as I told you earlier that solutions are stable mixtures, but suspensions are actually unstable mixtures. The meaning of unstable is that the particles present in a suspension are very big, so they are very heavy, and after some time the particles stick together and they become more larger, and because of high density they settle down at the bottom of the container. So at that condition there is clear distinction between the two phases, like solid and liquid, solid or gas. And you can take the example like the mixture of soil and water. If you try to mix the soil and water, so you can see the particles in the whole container for few minutes, but after some time the soil particles attracted towards each other and they get settled down at the bottom, and after some time you will see the soil settle down at the bottom and the water is clear. So you can see the two phases, and you can do the same thing with your sand and water, your calcium carbonate and water, and your कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इन जितने भी मिक्सचर्स हैं ये सब क्या होते हैं, सस्पेंशंस होते हैं। जनरली व्हेन वी यूज antacid for our stomach, so generally we use your Gelusil liquid or your Digen liquid. So in the market these liquids are actually the suspensions, because the main component in them is milk of magnesia or magnesium hydroxide, because magnesium hydroxide is not completely soluble in the water. So after some time the particles of magnesium hydroxide get settled down at the bottom. So that's why your milk of magnesia is also a fine example of suspension that we use. And there are a lot of medicines that are actually suspensions. If we talk about their properties, so number one, that they are heterogeneous in nature. Number two, if we talk about the particle size, so the particle size is more than 1000 nanometer. And number three, that they are unstable. Number four, their particles can be seen with the naked eye. That means आप इनके particles को अपनी आंखों से देख सकते हैं, because they are big in size. Okay. Number five, that they show the Tyndall effect.
टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसके लिए आप एक वीडियो को देखेंगे जो मैं अभी अपलोड करूँगा। फिर नंबर 6 is you can separate the components of suspension through filter paper। जैसे कि आपका वो था सोल्यूशन में हम पार्टिकल्स को थ्रू फिल्टर पेपर सेपरेट नहीं कर सकते, बट इन द केस ऑफ सस्पेंशन वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। ओके, तो अब हम बात करते हैं अबाउट योर कोलाइड्स। तो कोलाइड्स क्या होते हैं? कोलाइड्स आर एक्चुअली अगेन दे आर हेट्रोजीनस मिक्सचर्स in which the size of particles is between more than 1 nanometer and less than 1000 नैनोमीटर। तो इनका जो पार्टिकल साइज है उसकी रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, तो कोलाइड्स जो होते हैं उनको हम कभी कभी कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सॉल्यूशन तो अलग चीज है तो फिर कोलाइड क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि हमने को बताया था कि सॉल्यूशन का जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि हमें सॉल्यूशन में हमेशा ही एक सिंगल फेज दिखता है। हम देखते ही बोल सकते हैं कि ये लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है। ठीक है, इन द केस ऑफ सस्पेंशन, एक्चुअली सस्पेंशन जो होते हैं उनको देख के ये बता पाना कि ये सॉल्यूशन है या कोलाइड है, इट इज वेरी डिफिकल्ट समटाइम, बिकॉज देखने में हमें लगता है ये सॉल्यूशन है क्योंकि कोलाइड में भी आपको एक ही फेज जो है दिखता है, बट एक्चुअली वहां पे दो फेज आपस में जो है इंटरमिक्स होते हैं और क्लियरली ऑब्जर्व करना उनको पॉसिबल नहीं है। सो यू कैन से दे आर स्यूडो सॉल्यूशंस। सो इस बेस पे जो है हमको जो है सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्यूडो सॉल्यूशन है, और जो बाकी जो होता है सॉल्यूशन वो उनको बोल सकते हैं हम लोग दे आर ट्रू सॉल्यूशंस। सो कोलाइड इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन। अब जो के कोलाइड्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था अबाउट सॉल्यूशंस कि उनके दो कंपोनेंट्स होते हैं मेनली, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स को अपने साथ इंटरमिक्स करने की। ठीक है, अब जो आपके कोलाइड्स होते हैं इनमें भी दो कंपोनेंट होते हैं। तो जो आपके सॉलिड लाइक पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जो आपके सॉल्वेंट लाइक पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, तो जो आपके डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके डिस्पर्जन मीडियम में बहुत अच्छी तरह से इंटरमिक्स होते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि ये सॉल्यूशन है। अगर हम एग्जांपल्स लें कोलाइड्स के, तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो या तो नेचुरल हैं या मैन मेड है, बट दे आर कोलाइड्स। लाइक अगर आपके घर में अगर आप देखें तो जो आपका सोप सॉल्यूशन होता है वो आपका कोलाइड होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका स्टार्च का सॉल्यूशन होता है वो भी कोलाइड होता है। अगर आपने घर में अपने जेल वाला जो है आपने टूथपेस्ट यूज किया, जस्ट लाइक योर कोलगेट मैक्स जेल या क्लोजअप जेल, तो ये जो आपके जेल वाले टूथपेस्ट होते हैं ये भी आपके कोलाइड्स होते हैं। इसके अलावा जो आपका शेविंग फोम आता है वो भी कोलाइड है, जो आपका शेविंग क्रीम आता है वो भी कोलाइड है। इसके अलावा आप जो खाते हैं फ्रूट जेली, तो फ्रूट जेली भी क्या है आपका कोलाइड है। इसके अलावा बहुत सारे आपके हैंड वॉश आते हैं जो कि कोलाइड होते हैं नेचर में। ठीक है, इसके अलावा जो आपके जेल इंक है वो भी कोलाइड है। ये सारे आपके मैन मेड कोलाइड्स होते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल कोलाइड्स की, तो जो आपके क्लाउड्स हैं वो आपके नेचुरल कोलाइड्स हैं। ठीक है, आपके
बॉडी में जो प्लाज्मा है वो भी एक टाइप का कोलाइड है, ठीक। इसके अलावा जो ठंडक के मौसम में आपको दिखाई पड़ता है फॉग या मिस्ट, धुंध जिसको हम लोग बोलते हैं, धुंध या कोहरा, वो भी आपका एक टाइप का कोलाइड है, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी कोलाइड्स इन विच वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। अब हम बात करते हैं कोलाइड्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो नंबर वन, they appear like homogeneous mixture, but they are actually heterogeneous mixture. Number two, their particle size ranges between 1 nanometer to 1000 nanometer. Number three, they are stable. आपका जो सोल्यूशन है वो स्टेबल होता है, आपका जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल है, बट आपका कोलाइड भी स्टेबल होता है, यानी उसके पार्टिकल्स जो हैं वो अलग नहीं होते अपने मीडियम से, ठीक है। नाउ नंबर फोर, दैट देयर पार्टिकल्स कांट बी सीन विद द नेकेड आई। आप इनके पार्टिकल्स को थ्रू आइज देख नहीं सकते, यू नीड वेरी वेरी हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप टू सी देयर पार्टिकल्स, ठीक है। एंड नंबर फाइव, दैट दे शो द टिंडल इफेक्ट वेरी क्लियरली। आप कोलाइड्स में टिंडल इफेक्ट को देख सकते हैं, ठीक। अब नंबर सिक्स आप ये ले सकते हैं, दैट अगेन यू कांट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। आप कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। यू कैन ट्राई बाय टेकिंग योर क्लोजअप जेल, आप उसके कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। तो यू नीड सम डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स, ओके। तो जनरली कोलाइड्स को जो हम लोग जो है उसके पार्टिकल्स को कुछ केमिकल मेथड से ही जो है हम लोग अलग करते हैं। तो एट द लास्ट वी मस्ट कंपेयर द सस्पेंशन विद कोलाइड्स। तो पहले हम बात करते हैं उनके पार्टिकल साइज की। तो जो सस्पेंशन होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। इन द केस ऑफ कोलाइड द साइज लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ठीक। नंबर टू, इफ यू टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी, so collides are stable while suspensions are unstable, okay. Number three, the particles of suspensions are visible, but in the case of collides the particles are invisible with the naked eye, हो गया। Number four, that separation with the filter paper. So you can separate the particles or the components of suspension by the help of filter paper, but you are not able to separate the components of a colloid with the help of filter paper. 4 हो गया। Number 5, that and the similarity between suspension and colloid is both can show the Tyndall effect except solution. तो इस तरह से हमने कंपेयर कर लिया कोलाइड्स को भी और सस्पेंशंस को भी, ठीक है। इन द नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस मोर अबाउट कोलाइड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, बिकॉज जो कोलाइड है उसके बहुत सारे जो हैं क्लासेस होते हैं, लाइक जेल्स, एरोसोल्स, सॉलिड सोल, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।